Hello class, welcome back to your computer class. So kids, today we will start our topic with changing the size of the text. Okay? So today we are going to see that how we can change the size of our text in MS Word. How we can change the size of our text in MS Word. Now the first thing is changing the size of the text. See, yesterday also I have shown you that how you can change the size of your text. But today also I am going to explain the same thing. First is font size control the height of a font. So let us understand what is font size basically mean. So font size controls the height of a font generally measured in points. You can increase or decrease the size of the text in your document. So what you will do? You can increase or decrease the size of the font in your document. Now, what are the steps to do so? Select the text you want to change to a different form. Select the text you want to change to a different font. Click on the Home tab. As you all know that all the editing that we do, वो सारी कहाँ होती है? That all happens in Home tab. Then click on the down arrow font size. Click on the down arrow font size. Click on the size you want to use. Click on the size you want to use. The text you selected changes in the new size. What happened? The text that you select will get changed into the new size. To deselect text, click on outside the selected area. To deselect the text, click on outside the selected area. Okay. Now let us practice this and then we will move toward the bold, italic and underline. Okay, let us practice this first. See, by default the text size, the font size is 11. By default the size of the font is 11. Okay. Now if you want to change it, if we want to change the size, what we have to do? If we want to change the font size, then what we have to do? अब ये साइज तो 11 है, 11 पे ये रुका हुआ सा हमें दिख रहा है. Okay. Okay, so as you can see, by default the font size is what? By default font size is 11. ठीक है, तो what you can do is here you can, as you can see here is one drop down arrow. तो जब आप इस drop down arrow को प्रेस करोगे ना, तो ये ऐसा लंबा सा ऐसे ये ओपन होगा. Now जब ये ऐसा लंबा सा ओपन होगा, तो from here you can click your desired font size. Wait, let me show you. देखो जब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 8 to 72. दैट मीन्स आई कैन क्लिक फ्रॉम 8 to 72 और बाय डिफॉल्ट ये 11 होता है. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू चेंज द फॉन्ट साइज. ठीक है, सो एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द ब्लैंक एरिया. सपोज मैंने लिखा कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, इसको सेलेक्ट किया. नाउ आई वांट कि भाई इसकी टेक्स्ट साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए, फॉन्ट साइज इसकी इंक्रीज हो जाए. ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया. अर्लियर इट वाज 11, नाउ आई वांट इट टू बी 26. सो आई हैव क्लिक्ड ऑन 26. सी व्हाट हैपेंड, टेल मी क्या दिखा स्क्रीन पे अपने? फॉन्ट साइज क्या हो गया? फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया ना. फॉन्ट साइज जो कंप्यूटर लिखा था, जो पहले छोटा सा हमें दिख रहा था, अभी क्या हो गया? अभी क्लिक करने पे क्या हो गया? इंक्रीज हो गई. उसकी साइज क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. ओके, गुड. नाउ जब ऐसा करने से जब उसकी साइज हमारी स्क्रीन पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. अच्छा, वेरी गुड. नाउ अगर मैं पूरे टेक्स्ट का करना चाहूँ तो लेट अस मेक सम टेक्स्ट. Okay, so I'm going to search Rajasthan
ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान, क्लिक किया और राजस्थान के बारे में हमने क्लिक किया विकिपीडिया पे। वेयर इज विकिपीडिया? हियर इट इज। क्लिक किया, Ctrl+C, then we have clicked on here again, और अभी हमने क्या किया, Ctrl+V किया यहाँ पे, ठीक है। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, Ctrl+V किया। Now let us erase some of the thing to make it more beautiful, make it more presentable. We need to erase some of the thing. Okay, so we have erased some of the things. Now what happened? Ctrl+A किया, देखो, now I am going to explain you how we can increase the font size of this whole document. अब इस पूरे document का font size हम कैसे क्या कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इस पूरे डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज हम इंक्रीज करेंगे, मतलब इतनी सारी चीजें लिखी हैं, इन सब का हम कैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। तो पहले जब वन वर्ड का करना था तो हमने क्या किया, जब हमें वन वर्ड का सिर्फ करना था तो हमने उस वन वर्ड को सेलेक्ट किया। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दिस होल पैराग्राफ, ठीक है। हम फिर नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन दिस होल पैराग्राफ। ओके, चलो करके देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो हाउ वी विल डू, वी विल डू द ट्रिपल क्लिक। अब देखो ट्रिपल क्लिक करने पे क्या हुआ, ये पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। है ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द साइज। जब पूरा ये सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा पैराग्राफ हो गया, अब हमें साइज चेंज करनी है, तो हमने क्या किया, फॉन्ट साइज पे क्लिक किया। नाउ आई विल क्लिक ऑन 24। तो देखो जैसे ही 24 पे क्लिक किया तो क्या हो गया, या तो मैं अगर इसे 20 कर दूं सो दैट ये वन सिंगल पेज में आ जाए। 22 पे क्लिक करते ही देखो क्या हुआ, ये पूरा पेज क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। गॉट इट। अच्छा, तो हमने क्या किया, इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, फिर हम फॉन्ट साइज पे हमने क्लिक किया और अब इसकी फॉन्ट साइज हमने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। हमने इसकी फॉन्ट साइज क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। गॉट इट। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज। गॉट इट। चलो करके देखते हैं अब आगे। अच्छा ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉन्ट साइज तो हमने कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू सी इज वी हैव टू मेक अवर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, italic and underline. See, making our text appear bold, italic and underline, what it does, it helps us to, it help us to emphasize our document. अपने डॉक्यूमेंट को emphasize करने में हमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा जो हेडिंग होती है वो कैसी होती है, वो डार्कन होती है। ज्यादातर टाइम आपने देखा होगा हेडिंग जो होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की वो डार्कन होती है। तो चलो वी विल ट्राई दैट ऑल्सो।
नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग, चलो बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन करके देखते हैं। नाउ सपोज अगर मुझे ये हेडिंग डालनी है, मुझे राजस्थानी हेडिंग में डालना है, ठीक है। तो क्योंकि दिस होल पैराग्राफ इज अबाउट राजस्थान, तो मैम ने सोचा राजस्थानी क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग में राजस्थान ही डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको सेंट्रल अलाइनमेंट किया, राजस्थान डाल दिया, ठीक है। नाउ देखो प्रॉब्लम क्या है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। भाई क्योंकि अभी हमने इसे क्या नहीं किया, अभी हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया है। ओके, सो लेट अस डू राजस्थान पे क्लिक किया, वेट लेट मी इरेज द लेफ्ट ऑफ द स्पेस। नाउ राजस्थान को हमने सेलेक्ट किया। नाउ व्हाट वी वांट, नाउ व्हाट वी वांट, अब हमें क्या करना है, इसे बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया एंड अंडरलाइन विद अ सिंगल, ओ सॉरी, स्ट्राइक ऑफ नहीं, अंडरलाइन। तो देखो अभी हमने क्या कर दिया, हेडिंग को बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो दिस इज हाउ यू विल डू, you will make any text appear bold, italic and underline. This is the way how you can make your text appear bold, italic and underline. We have done this also. Now next is what, changing the font color, and after that, after the changing the font color, highlighting text. चलो करके देखते हैं, changing the font color and changing and highlighting our text, ठीक है। फॉन्ट कलर को चेंज करना है एंड देन टेक्स्ट को क्या करना है, हाईलाइट करना है। लेट अस ट्राई डूइंग दैट, ठीक है। चलो लेट अस ट्राई डूइंग दैट। अच्छा, so changing the color of the font. Color of the text can be changed to draw attention toward the heading or important information in your document. What you can do, you can change the heading of the font. You can change the heading of the font to draw attention toward the heading or important information in your document or the important information of your document. Now select the text you want to format. What you want to do, select the font, select the text that you want to format. First is what, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिससे आप क्या करते हो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हो। देन क्लिक ऑन द होम टैब रिबन और फिर होम टैब में क्लिक ऑन द font color drop down menu and then click on any color. Then what happen, then you have to click on any color, whatever the color you want to put, click on that. चलो करके देखते हैं। So this is our text. Now suppose I want to change the text of राजस्थान का, क्या करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है। राजस्थान को मैंने सेलेक्ट किया, राजस्थान को सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, अब देखो हियर आई एम गेटिंग द ऑप्शन ऑफ फॉन्ट कलर। मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, अब यहाँ से व्हाट हैपन, आई कैन चूज माय डिजायर्ड कलर। देखो दिस इज हाउ आई कैन चेंज द फॉन्ट कलर, दिस इज द वे हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट कलर। अच्छा चलो करके देखते हैं।
करेंगे हाईलाइटिंग अवर टेक्स्ट. नाउ वी वांट टू डू द हाईलाइटिंग. अब इसे सेलेक्ट किया. नाउ देखो इधर वी विल गेट अ ऑप्शन ऑफ हाईलाइटिंग. क्लिक ऑन द हाईलाइट, चूज योर डिजायर्ड कलर एंड जस्ट लीव. देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट पूरा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया. ये टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्या हो गया बेटे, हाईलाइट. आपके स्क्रीन पे ये पूरा टेक्स्ट हो गया. नाउ जब हमने इसे सेलेक्ट किया और हमारी स्क्रीन पे ये हो भी गया, अब हमें क्या करना है, आफ्टर दिस व्हाट वी वांट टू डू, ये हमने कर लिया, हाईलाइट भी कर दिया और टेक्स्ट भी कलर कर दिया. नाउ सी व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू डू. हाईलाइटिंग कलर तो हमने कर लिया. नाउ चेंजिंग द अलाइनमेंट. Now what you have to do, you have to change the, now what happened, you have to change the alignment. आपने क्या करना है, अलाइनमेंट को आपने चेंज करना है. ओके चलो देखते हैं हाउ वी कैन क्लिक ऑन द अलाइनमेंट. So you can align the text in a different way. देखो alignment means what, where you want to click, where you want to keep your text. आप अपना टेक्स्ट कहाँ पे रखना चाह रहे हो, मीन्स यू वांट टू कीप इट इन सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाइड. आप अपना टेक्स्ट को किस तरफ लिखना चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि क्या होता होगा, जैसे ही आप अपने जैसे ही आप क्या करते होगे, जैसे ही आप हेडिंग डालते होगे. आप देखो यहाँ पे जो ये हेडिंग है ये लेफ्ट साइड में है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा चैप्टर की जो हेडिंग होती है वो कहाँ होती है, सेंटर अलाइनमेंट में होती है. चैप्टर की हेडिंग कहाँ होती है, सेंटर अलाइनमेंट में चैप्टर की हेडिंग होती है. ओके now let us try this. So let us read the steps first. First is select the text that you want to format. सबसे पहले आपने क्या करना है, you have to select the text that you want to format. Then click on the home tab. Then what you have to do, आपने home tab पे click करना है. सारी formatting हम कहाँ पे करते हैं, सारी formatting हम home tab पे करते हैं. तो आपने क्या करना है, home tab पे click करना है. Click on one of the following button. Then what you have to do, आपको क्लिक ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग बटन, नीचे दिए गए बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है. अलाइन लेफ्ट आप कर सकते हो, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई. देखो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट इज व्हाट दैट आप क्या करो, अपने टेक्स्ट को अलाइन करो, आप अपने टेक्स्ट को अच्छे से अलाइन कर पाओ. चलो करके देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. तो यहाँ पे हमने राजस्थान को, ये जो हमने लिखा है इसे सेलेक्ट किया. अब देखो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, देखो पैराग्राफ ग्रुप में यू कैन गो गेट अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई. तो सपोज आई वांट टू अलाइन इट लेफ्ट, so I have clicked on align left. ठीक है, अब हमने जैसे अलाइन लेफ्ट किया तो सी व्हाट हैपन, जैसे ही हमने अलाइन लेफ्ट किया तो क्या हुआ हमारी स्क्रीन पे, देखो अलाइन लेफ्ट करते ही हमारी स्क्रीन पे क्या हुआ, देखो अलाइन लेफ्ट करते ही हमारी स्क्रीन पे क्या हुआ, अलाइन जैसे ही हमने किया
अलाइन लेफ्ट करते ही ये जो राजस्थान था ये हमारी स्क्रीन पे कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू अलाइन इट इन सेंटर, तो हमने क्या, वेयर वी विल ट्रेस, अलाइन सेंटर, तो व्हाट विल हैपन, दिस थिंग विल गेट इन सेंटर। ओके, गॉट इट? Okay, now we are going to align it in right side. So we are going to align it this side, that is align right. देखो align right करने पे क्या हुआ भाई, align right करने पे क्या हुआ, जैसे ही हमने align right किया, so what happen, अब ये देखो right side हो गया, और जब हम इसे justify करेंगे, justify करते ही where it was earlier ये वहां पे चला जाएगा। Got it? चलो, जस्टिफाई में बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट ही माना जाता है। Okay, now so let us see after the alignment what is the next thing that we have to read. After the acha align center right justify. The Microsoft Office 2020 is the most recent version of Microsoft product. It is a successor of Microsoft Office 2007. Okay, so see what happened here. They are explaining you. यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप कैसे अलाइन राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन जस्टिफाई एंड लेफ्ट, इन सारों में, इन सारे जो अलाइनमेंट है इनमें डिफरेंस क्या है, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो देखते हैं हाउ वी कैन डू अलाइन लेफ्ट। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इज द मोस्ट रिसेंट वर्जन। देखो अलाइन लेफ्ट करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट किधर आएंगे, लेफ्ट साइड। अब देखो जब सेंटर कर रहे हैं तो क्या ये सेंटर में है, राइट में राइट, एंड जस्टिफाई में ये पूरे बॉक्स को फिल किया हुआ है। जस्टिफाई में व्हाट हैपन, जस्टिफाई में ये क्या हुआ है, पूरे बॉक्स को क्या किया हुआ है, ये हमारे पूरे बॉक्स में क्या दिख रहा है, जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इंसर्टिंग पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। सो दिस आई हैव explained you earlier also that how you can insert picture and clip art. ठीक है, so next topic is inserting picture and clip art. Now thing is कि कैसे हम clip art पे क्लिक करेंगे, कैसे हम अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, how we can insert picture and clip art. So MS Word has an important feature through which what you can do, through which the picture and clip arts can be inserted into the document, through which pictures and clip arts can be inserted into the document. Along with the text, inserting picture and clip art make the document more attractive and presentable. So what happened, along with the text, inserting picture and clip art make the document what? Make the document more presentable and attractive. As it is being said that a picture can represent thousands of words. एक पिक्चर thousands of words क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। नाउ तो अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको और ज्यादा attractive and presentable बनाने के लिए what we can do, we can make our text, what we can do, we can enter the picture. So let us see what are the ways through which you can enter the picture in the document. Though there are many, but still let us follow the thing that has been given in your book. First is, you can insert a picture to your document to illustrate the concept of document. Let us see. Click on the location in your picture where you want to add the picture. अब जैसे आपकी स्क्रीन पे क्या है, इन्होंने मोबाइल कंप्यूटर्स के बारे में कुछ समझाया है।
तो इन्होंने पिक्चर भी किसकी ली है, कंप्यूटर लैपटॉप्स की ही इन्होंने पिक्चर भी ली है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया है, कंप्यूटर लैपटॉप की ही इन्होंने पिक्चर भी ली है। तो बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट लेट मी शो यू हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, तो मेरे डॉक्यूमेंट में एज यू कैन सी आई एम राइटिंग अबाउट राजस्थान। ठीक है, मैं किसके बारे में लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अबाउट राजस्थान। तो हाउ आई कैन ब्यूटिफाई इट, आई कैन क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक किया, देखो हियर आई एम गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ पिक्चर, so what I can choose file, but nowadays Word also give us feature to choose picture online। ठीक है, तो I am going to choose the picture online related to Rajasthan। ठीक है, so I am going to type here Rajasthan and just click enter। Let us see what we will get here। देखो हमारे स्क्रीन पे क्या होगा, राजस्थान से रिलेटेड जितनी पिक्चर थी वो सारी हमारी स्क्रीन पे क्या हो गई हैं, आ गई। अलग अलग फोर्ट्स की, हवा महल के, लेक्स की पिक्चर हमारे स्क्रीन पे क्या हो गई हैं, आ चुकी हैं। नाउ इफ आई हैव टू चूज द वन ऑफ द पिक्चर, तो इफ आई चूज दिस पिक्चर, सपोज आई एम गोइंग टू चूज दिस पिक्चर एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट इट, सी व्हाट हैपन। मेरी स्क्रीन पे क्या हुआ, राजस्थान की पिक्चर क्या आ गई ना, दिख रही है सबको। स्क्रीन पे क्या हुआ, राजस्थान की पिक्चर आ गई। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। अच्छा देखो, आफ्टर इंसर्टिंग द पिक्चर, यहाँ पे देखो हैंडल्स की बात की गई है। हैंडल्स मीन्स व्हाट, दैट यू कैन क्लिक देम। हैंडल्स मीन्स व्हाट, दिस पिक्चर इन योर डॉक्यूमेंट, टू डिलीट पिक्चर जस्ट क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू डिलीट। और हैंडल जो होते हैं पिक्चर के, यूजिंग दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक योर पिक्चर अपीयर बिग, स्मॉल और एनीथिंग। चलो करके देखते हैं। नाउ सपोज इफ आई वांट टू मेक अप माय पिक्चर अपीयर बिग, बड़ा पिक्चर मुझे चाहिए स्क्रीन पे, सो व्हाट आई विल डू। अब ये देखो राजस्थान की तो छोटी सी पिक्चर है। नाउ सी व्हाट हैपन, मैंने क्या किया, ड्रैग करके क्या किया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। नाउ इफ आई वांट टू ऐड वन मोर पिक्चर, ठीक है, मुझे अब वन मोर पिक्चर चाहिए, तो मैं गई इंसर्ट पे, वेयर आई विल क्लिक नेक्स्ट, बिंग, और ऑनलाइन पिक्चर पे मैं गई, यहाँ पे मैंने सर्च किया अगेन राजस्थान, press enter, you will get some picture। now I want a picture of this fort, and यहाँ पे देखो मेरे पास आई एम गेटिंग द ऑप्शन ऑफ इंसर्ट। अब देखो क्या हुआ, मेरी स्क्रीन पे क्या हो गया, जिस कर्सर इज सी व्हाट हैपन, मेरी स्क्रीन पे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राजस्थान फोर्ट ऑल्सो। अब देखो मेरी स्क्रीन पे क्या हो गई, मेरे स्क्रीन पे टू पिक्चर्स आ गई हैं राजस्थान की, है ना। एंड दोनों के साइज को व्हाट आई कैन डू, आई कैन एडजस्ट। दोनों के साइज को व्हाट आई कैन डू, आई कैन एडजस्ट। देखो मैंने इस पिक्चर को बड़ा कर दिया एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज साइज ऑफ दिस पिक्चर एज वेल। ठीक है, चलो दोनों को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो जैसे सो inserting picture will help you, what inserting picture will help you to make your document more attractive। ठीक है, जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो व्हाट हैपन, आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है ना। तो आज हमने डॉक्यूमेंट में पिक्चर अटैच करके देखी। नाउ नेक्स्ट what we will do, next we are going to see how we are going to add clip art। अब next we will see how we will clip art पे कैसे हम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो किड्स, दिस इज इट फॉर टुडे एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।